on the space wave propagation. तो हम लोग यहाँ पर space wave propagation की बात करते हैं. इस बार हमारा जो target है that we have a Earth, we have a satellite in space, and how the Earth is communicating with this satellite, and what is basically the process behind that, किस तरीके से communicate करता है, and what are the basically things that are associated. So the communication which is being made, जो भी communication होता है Earth के बीच में और स्पेस स्टेशन के बीच में या अर्थ के बीच में और सैटेलाइट के बीच में, that comes into the category of space wave propagation. So before going further, I must show you one slide that will help you to understand that. If you see this one, so this particular slide will tell you properly what exactly this space wave propagation is here. So if we have satellite, some communication satellite is here, and we have basically the two stations on the earth, 1 and 2 are here. So the wave which is crossing up the ionosphere directly going to the satellite and then coming up again to the base station with the help of these waves are basically called as a space wave. And as we are talking about the space wave, then definitely it is very much important that we should understand how this space wave propagation takes place, and which is the important part in that, the medium. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है medium, because we have a station here, we have a satellite here, and in between the communication is taking place in the space. So we are here to talk about how this space wave propagation takes place and what is the basic attributes behind that. So in this section, we are coming up with this one, and we have something, what exactly we categorize. So as you have already gone through the antenna and wave propagation, you might have an idea that what exactly the space wave propagation we are talking up again here. So these waves occurs within the lower 20 kilometer of the atmosphere and are comprises of a direct reflected wave. So basically we have two options. One, we have a satellite, we have two antennas lying on Earth, so they are communicating with each other, the one way, and the second way they are just going to the satellite and coming back to this, वापस आ रही हैं, then it is called as. So first way, the 20 kilometer of the atmosphere and comprising of a direct and reflected wave. Radio waves having high frequency are basically called as a space wave. These waves have the ability to propagate through atmosphere from transmitter antenna to receiver antenna. Important part, they can easily propagate through atmosphere. This wave can travel directly or can travel after the reflecting of Earth's surface to the troposphere Earth. So it is called as a tropospherical propagation. Basically, the technique is of the space wave propagation used in bands having very high frequency, VHF band, UHF band, etc. Such higher frequency and other wave propagation like sky wave propagation, ground wave propagation cannot work. Only space wave propagation is left, which can handle the frequency waves of higher frequency. The other name of the space wave propagation is line of sight. So it is the line of sight, whether you have an antenna here watching your satellite or whether the two antennas are watching to each other. In both the cases, in both the conditions, that this comes under the line of sight. दोनों में ही एक दूसरे को चीजें दिखाई देनी चाहिए, और जहां पर आपके VHF, UHF उनसे ऊपर की frequencies होती हैं, in those frequencies, this particular wave of propagations are working upon. So this is basically the process. So finally, the target is here. What we are talking, we are simply talking the technique of space wave propagation is bands having very high frequencies. VHF और UHF bands में काम कर रहे हैं, जहां पर आपका बेसिकली आप स्काई वेव के बारे में बात करते हैं या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्योरीज की बात करते हो, दैट डजंट अकर, वो नहीं होती है. In which we have a line of sight, they can easily propagate, they can penetrate the atmosphere and atmosphere को penetrate कर जाती है. चाहे वो यहाँ से सैटेलाइट की बात की जाए, वहां भी उनका पेनिट्रेशन दिखाई देगा सेम, और या आप दो वेव्स के बीच की बात कर रहे हैं, उन दोनों ही वेव्स के बीच में भी आपका दो एंटीनास अगर आपके हैं, उन दोनों के बीच में भी जो कम्युनिकेशन आपका दिखाई देगा वो भी आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा. So this is the basically features and attribute of this one. So it is totally depending upon a high frequency range that works upon. So that's why this particular diagram comes up, which tells you that if we have an antenna at the Earth station here and the second is here, then it requires a line of sight communication to the communication satellite. अगर आपके दो एंटीनास अर्थ पर दूर हैं तो उस सिचुएशन में आपका लाइन ऑफ साइट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर आ जाएगा. जब कर्वेचर आ जाता है अर्थ का, तब आपको जरूरत होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की.
then it becomes line of sight, क्योंकि ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है, so it can communicate. Don't worry, you are not able to communicate with each other, but I am here to communicate because I see both. मैं ट्रांसमीटर को भी देख सकता हूँ and I'm watching the receiver station as well as. तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को देखने की वजह से it can easily communicate with it. तो इसके साथ ये easily communicate कर पाता है. Simply talking about more here in this case, अगर हम ये पास हैं, if they are very close to each other and they can watch, so this communication is also called as a space wave communication. So this is the important attribute of the space wave communication, and satellite prefers this because we are studying about the satellite communication. So we have to study, हमें पढ़ना ही होगा कि ये space wave propagation होता कैसे है और इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, क्या-क्या परेशानी आती हैं, क्या-क्या इनके attributes रहते हैं. That we all have to discuss here. वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे. So few important lines are here. The space wave follows two distinct paths from the transmitting antenna to receiving antenna, one through the air directly to the receiving antenna, the other reflected from the ground to the receiving antenna. The primary path of the space wave is directly from the transmitting antenna to the receiving antenna. So the receiving antenna must be located within the radio horizon of the transmitting antenna. अगर हम LOS की बात कर रहे हैं, क्लोजर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कहा गया था तो ये एक दूसरे के जो हॉरिजन होता है, रेडियो हॉरिजन होता है, एक दूसरे को दिखने चाहिए, इस पर होना चाहिए. Because space waves are refracted slightly even when they propagated through the troposphere, the radio horizon is actually about the third further than the line of the sight of the natural horizon. ये बताते हैं कि अगर आप सीधी सी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपकी जो वेव है वो थोड़ा आपके ट्रोपोस्फीयर से थोड़ा रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ा चेंज होती है, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपका जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है उससे थोड़ा सा फार्दर हो जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो इट कैन वर्क अपॉन, तो दैट हेल्प्स. तो ये थोड़ा सा मदद करता है लाइन ऑफ साइट को इंक्रीज करने में, जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होता है. सो फ्यू पॉइंट्स आर हियर रिलेटेड विद दिस वन. Although space waves suffer little ground attenuation, ground भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है, they nevertheless are susceptible to the fading because this is space wave actually follow the two part different length, direct path, ground reflected path to receiving side and therefore may arrive in the out of phase. अब इन्होंने वन पॉइंट और क्रिएट किया, उन्होंने कहा ठीक है दो के बीच में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स? द फैक्टर इज फर्स्ट एटमॉस्फेयर और दूसरा फैक्टर ग्राउंड भी है. तो ग्राउंड की वजह से भी एटेन्यूएशन होते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से भी एटेन्यूएशन हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शंस भी हो सकते हैं. ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे. वी विल डिस्कस ऑल देम, इनके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे. If these two components waves are received in phase, the result is a reinforcement or a stronger signal. Likewise, if they are received out of phase, they tend to cancel one another, which results in a weak or fading signal. अगर आपने ये फैक्टर्स अफेक्टेड हो गए तो आपका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा. If suppose these are not here and if you have a very stronger signal आपका है, so you will getting a good results. तो ये fading effects भी sometimes create करते हैं. Meanwhile, हमने ये जो पढ़ा, now we have a discussion related with the satellite. अब हमें ये चीज समझने के लिए first of all ये समझना पड़ेगा कि if suppose this process is going in the atmosphere और atmosphere earth ये इफेक्ट डालते हैं, तो अब वो कौन कौन सी frequencies हैं on which it can work upon, किस किस पे ये काम करते हैं. So let's talk. Because talking about the atmosphere, and atmosphere changes its phenomenal effect. Atmosphere अपने phenomenon. So fine, like as we were talking about, if suppose we are looking to find it out that we want to communicate with the atmosphere, we want to communicate with the atmosphere, और atmosphere के through communicate करना है किससे? We have to communicate with the satellite. So most important part is there, how we are going to communicate. It means the frequency. Frequency बिल्कुल वही है कि if suppose two peoples are here that belongs to India, how they are talking to each the other. एक दूसरे से बात करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हिंदी यूज कर रहे हैं, तमिल यूज कर रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? The same is here. If suppose the satellite is there in the space and base station is on Earth, then the relationship between this satellite and the base station on the Earth will need to communicate with a certain frequency. For that, certain band has been decided. Those bands are basically the L band,
1 to 1.5 gigahertz, S band 1 to 3 gigahertz. So those are lying between the 1 to 3 gigahertz called as a S band. C bands 3 to 8 gigahertz, X band 8 to 12 gigahertz, KU band 10 to 18 gigahertz, KA band 18 to 22 gigahertz. So these are the basically the frequency bands by which a Earth station communicate with the satellite, and during that all the responses of atmosphere changes for all L band, S band, C band, X band, KU band and Ka band. So if somebody asks to you this question that what are the basically the bands which are working for the satellites, so you may give an answer. L, S, C, X, KU and K are the very common bands that works with the satellite. तो satellite के साथ काम करते हैं. And as we have a topic here to find out their phenomenal effect, उनके phenomenal effects पे बात करना है, तो important point ये होगा कि for each and every frequency it responds differently. Atmosphere के losses अलग होंगे, atmosphere का behavior अलग होगा, work activity अलग होगी, that all will work upon. तो ये हमारा यहाँ पर target है to understand this, that how we are going to work this one, कि किस तरीके से इन चीजों को हम समझते हैं. And among them, if suppose we are working satellite specifically, so two things are very much important because we want to distinguish two signals. ये बहुत important है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने में अगर हम दो सिग्नल यूज कर रहे हैं, एक ऊपर जाने के लिए जो सैटेलाइट को अर्थ से बेस स्टेशन अर्थ से सैटेलाइट को कनेक्ट कर रहा है, इट मींस द ट्रांसमिटिंग पार्ट, एंड सेकंड पार्ट जो सैटेलाइट अर्थ के स्टेशन को कम्युनिकेट कर रहा है. So these two terminologies are basically called as uplink and the downlink frequencies. अब ये जो uplink और downlink frequencies जो होती हैं, that are called C band, X band, KU band और KA band. इन चार के लिए example लिया गया है. So talking about first uplink 6 gigahertz, downlink 4 gigahertz. Why we keep these two frequencies different? ये question पूछा जाता है. इसलिए रखा जाता है ताकि इनमें सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा हो तो दो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज के बीच में interference now, there should not be any sort of the interference in between them. So because of that there should be a kind of a thing like transmission should not be interfered नहीं होना चाहिए. So this is exactly the 6 gigahertz and the 4 gigahertz differences. सिमिलरली एक्स बैंड में अगर बात करेंगे तो 1 गीगाहर्ट्ज और 7 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस आ गया. केयू बैंड में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो 14 गीगाहर्ट्ज, 11 गीगाहर्ट्ज, के बैंड में 30 गीगाहर्ट्ज और 20 गीगाहर्ट्ज. तो ये डिफरेंसेस होते हैं जिन डिफरेंसेस पर आपको इन फ्रीक्वेंसीज के रेस्पेक्ट में आपको काम करना पड़ता है. ठीक है. सो हियर वी हैव सम एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ दीज वन. So later on we'll go also for that what are the advantage and the disadvantage we get in C band. So talking about first of all C band, broad footprint, little rain fade. See effects कम, यहाँ पर effects आपको दिखाई देने लगे एटमॉस्फेयर के. क्या एडवांटेज मिला? ब्रॉड फुटप्रिंट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे कवर कर सकते हो आप. इसका मतलब इसका रेडिएशन पैटर्न ब्रॉड होगा इस फ्रीक्वेंसी पे काम करने पे. इट कवर्स मैक्सिमम एरिया. सो दिस इज द ब्रॉड फुटप्रिंट. इट मींस when it is released from the satellite or going to the satellite, it has a wide expansion of the radiation pattern. So this is the meaning of this footprint word. Little rain fade, एटमॉस्फेयर इफेक्ट आ गया कि रेन फेड कम होगा. डिसएडवांटेज क्या है? वीक सिग्नल्स, इंटरफेरेंस हो सकता है, लार्ज एंटीना साइजेस रिक्वायर्ड हैं और एम्पलीफायर्स. कमिंग टू नेक्स्ट केयू बैंड में करते हैं तो क्या है? फोकस फुटप्रिंट्स. इट मींस बीम कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, ब्रॉड की जगह आप हाई कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट टू पॉइंट. नो टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस, स्मॉल एंटीना एंड एम्पलीफायर. जो इसके डिसएडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस आ गए. इंटरफेरेंस टू रेन पर एक प्रॉब्लम आ गई, जो रेन में हमें इंटरफेरेंस कम मिल रहा था, दैट वी आर हैविंग मोर हियर इन दिस केस. इस केस में हमें वो ज्यादा मिल गया. ठीक. के बैंड में फोकस फुटप्रिंट, लार्ज अनयूज्ड बैंडविड्थ. अच्छा, के बैंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा हो रही है, फोकस फुटप्रिंट मिल रहा है, अनयूज्ड बैंडविड्थ मिल रहा है, इसमें भी हमें इंटरफेरेंस ऑफ रेन मिल गया. इस तरीके से हमें if talking C, K, KU, few of having effects of atmosphere. और हमारा पढ़ने का जो आज का टारगेट है, the important part is here, वो यही है कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर इफेक्ट डालता है हमारे ओवरऑल सिग्नलिंग के ऊपर. So that's we are coming back on the same. So what are the basically the limitation of space waves? क्या limitations हो सकती हैं?
because it is in the form of electromagnetic radiations like radio waves are affected by the phenomena of reflection, refraction, diffraction, absorption, polarization and scattering. तो अगर आपसे लॉसेस की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए लॉसेस कहाँ कहाँ होंगे, किस किस से होंगे, जहां फिनोमेनाज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बाइक लेके एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे हैं, दिस इज अ कम्युनिकेशन। तो एक बाइक में कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं जो लॉसेस में कहा, फ्यूल कंजप्शन, एक्सेलेटर से स्पीड देते फ्यूल का कंजप्शन होगा, एयर प्रेशर ऑफ टायर, ये भी एक कंजप्शन हो गया। और क्या हो सकता है, टायर की रबिंग, टायर घिसना शुरू होगा, ये भी एक फिनोमेना हो गया। और क्या हो गया, चेन स्प्रॉकेट और चेन का काम करना, ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम करना, है ना, इंजन ऑयल। तो ये सारे वो फिनोमेनास हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं दैट परसिस्ट विद इन द मूवमेंट ऑफ अ बाइक। एक बाइक के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। एंड एज ऑल दीज आर वर्किंग ऑन दिस वन, दिस ऑल आर वर्किंग, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे व्हाट आर द लॉसेस एसोसिएटेड विद दिस वन, कि इनके साथ कौन कौन से लॉसेस एसोसिएटेड है। और हमारा टारगेट जो है वो टारगेट यही है कि हमें इन लॉसेस के बारे में ही पढ़ना है। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट यही है कि हमें लॉसेस के बारे में ही पढ़ना और समझना है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिग्नल, हम अपने सिग्नल को कैसे प्रोटेक्ट करें जिससे वो अर्थ से फ्री स्पेस में जब जाए तो फ्री स्पेस के बीच में हमारा सिग्नल प्रॉपरली चला जाए, लॉसेस ना। सो हियर some limitation of the space wave propagation is what? These waves are limited to the curvature of Earth. If we are talking about two antenna communication, ये प्रॉब्लम आती है, अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट डालता है। And these waves are having a line of sight propagation, means their propagation is along the line of sight. आपस में दो कम्युनिकेशन मोड्स को एक दूसरे को देखना है, they must be visible with each other, एक दूसरे के साथ विजिबल होने चाहिए, एक दूसरे को दिखाई देने चाहिए। दैट इज द बेसिकली द प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, ये दो इश्यू। अब इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का कर्वेचर क्या इफेक्ट डालता है? तो हम लोगों ने बात की थी कि ग्राउंड भी है, एटमॉस्फेयर है, ये दोनों ही चीजें हमारे अर्थ के कर्वेचर के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ पे कर्वेचर पे इफेक्ट डालेंगे। एंड कमिंग अप मोर हियर, so if we have an atmosphere and that atmosphere is taking a part as a medium from station of Earth to satellite, so first of all the first important factor which comes in the as a obstruction in the communication, communication के बीच में जो सबसे पहली रुकावट आती है वो रुकावट आती है कि जो absorption phenomena होता है atmosphere में, वो absorption का phenomena यहाँ पर problem create करता है। So what is basically VHF range, like talking about, अगर हम इसमें फिनोमेना में बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सो इन VHF रेंज रेन एटेन्यूएट्स द वेव पार्टली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। और ये रेन का इफेक्ट तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है, क्योंकि आपका D2H जो होता है वो बंद हो जाता है ड्यू टू द क्लाउड्स एंड रेन्स, ठीक है। एटेन्यूएट्स द वेव पार्टली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड पार्टली बाय स्कैटरिंग। दिस एटेन्यूएशन इज अ फंक्शन drop diameter and drop concentration and the losses due to the scattering. See how much important, कितना अच्छे से ये चीज को बताया गया, it's very interesting. In VHF range rain attenuate करती है, the wave partly due to the absorption and partly by scattering। कुछ तो absorption हो जाता है और कुछ scattering हो जाती है, दो factors simultaneously work कर रहे हैं, absorption as well as a scattering की बात भी कर रहे हैं और absorption की बात भी कर रहे हैं। स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन बोथ persist simultaneously, एक साथ होते हैं दोनों। और स्कैटरिंग फिनोमेना का मतलब जब वेव फैल जाती है, टकरा के, पार्टिकल से टकराई और टकरा के फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग। और एक जब टकराती है तो टकराने के बाद अगर अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को दे देती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं और फैल जाने प्रोसेस को स्कैटरिंग। तो दोनों ही फिनोमेना होते हैं। दिस एटेन्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ ड्रॉप डायमीटर। किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जो रेन की ड्रॉप आ रही है, वो रेन की ड्रॉप का डायमीटर क्या है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मतलब पानी की जो बूंद है, उस पानी की बूंद का साइज क्या है, वाटर ड्रॉप जो रेन की आ रही है उसका साइज क्या है, और साइज के साथ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं एक रेन ड्रॉप में, क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसकी। ये दोनों ही फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं।
सीरियस एटेन्यूएशन इज ऑब्जर्व्ड एट 3 सेंटीमीटर अगर हम बात करते हैं फॉर हैवी रेन्स नॉट क्लाउड बर्स्ट एंड 1 सेंटीमीटर फॉर द मॉडरेट रेन। ये बेसिकली डायमीटर्स के बारे में बात की जा रही है जो हैवी रेन और मॉडरेट रेन के केस में कंसीडर किया जा रहा है। सिंस एटेन्यूएशन to mass of water unit volume and drop size for cloud and fog are smaller than raindrops, serious attenuation occurs below 1 centimeter due to the cloud and fog. उन्होंने कहा जब क्लाउड और फोग नहीं है, जब क्लाउड और फोग नहीं है तो उस कंडीशन में क्या डायमीटर्स अफेक्ट करेंगे, और जब क्लाउड और फोग्स हैं तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब 3 फैक्टर्स एक साथ हो गए, ड्रॉप का खुद का कॉन्सेंट्रेशन, ड्रॉप का डायमीटर, ड्रॉप फॉग के टाइम पे है, क्लाउड्स के टाइम पे है, या विदाउट फॉग या क्लाउड्स है। सो दैट और आर मैटर। तो सबसे पहला वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये सबसे बड़े लॉसेस क्रिएट करते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट लॉसेस इन आइस आर कंसिडरेबली लेस इन लिक्विड वाटर। आइस के अंदर से क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी जो फॉर्म होती है सॉलिड होती है, वहां पे पेनिट्रेशन हो जाता है, लेकिन लिक्विड के अंदर मूवमेंट होने की वजह से लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो लिक्विड वाटर में कंपैरेटिवली लॉसेस ज्यादा हैं, जबकि आइस में अगर बात करी जाए तो कम है। एटेन्यूएशन बाय द ड्राई हेल स्टॉर्म is less than that due to the rain except in millimeter region where it is comparable as water content in the even a heavy snowstorm is quite small. Attenuation by the snow is always small. तो अब देखो उन्होंने एग्जांपल किया, जो हेल स्टॉर्म्स हैं बेसिकली उनके कंपैरिजन में अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश में ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं हेल स्टॉर्म्स में, जहाँ पे ओले गिरते हैं, जिसको बोलते हैं ना ओले गिर रहे हैं, क्योंकि ओले क्या हुए आइस फॉर्म हो गए, वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं जितना कि बारिश की बूंदें क्रिएट कर रही हैं। इसी तरीके से स्नो के केस में भी उन्होंने यही बात बताई, स्नो के केस में भी एब्जॉर्प्शन और लॉसेस कम होंगे, वाटर कंपैरेटिवली ज्यादा लॉसेस क्रिएट करेगा। और सीधा से फंक्शनैलिटी है कि अगर एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप के बीच में जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट है वो मूवमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, दैट ऑल विल वर्क्स अपॉन, वो सारे के सारे काम करेंगे। Due to the molecular interaction, absorption of energy takes place at the certain wavelength due to the water vapors and gases. It peaks at 1.33 सेंटीमीटर। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो फिगर्स ये बताते हैं कि ये डायमीटर कंडीशन हो गई 1.33 सेंटीमीटर, 1.7 mm, 1 mm। peaks due to the absorption of O2 molecules occurs at 5 mm। मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में साइज में, वाटर ड्रॉपलेट के साइज में, स्नो के साइज में और हेल्स के साइज में, इन सब के रिस्पेक्ट में ओवरऑल हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दैट एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स थ्रू एब्जॉर्प्शन एज वेल एज द स्कैटरिंग। तो मेरा यहाँ पर जो मोटिव था वो मोटिव यही था आप लोगों को ये समझाना कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर सिंपल बारिश जो होती है वो बारिश ही कितना बड़ा इफेक्ट डालती है। ये बारिश के साथ अगर हेल हो रहे हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, ओले गिर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट है। सेकेंड, अगर इस बारिश के साथ में फोग है, क्लाउड है, स्नोफॉल है, तो उनका क्या, बिकॉज इट ऑल हैपन्स, ये सारी चीजें अर्थ पर होती हैं, और सैटेलाइट अपनी जगह पे फ्री स्पेस पे अवेलेबल है, वो वहां पर है, अर्थ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, और इनके बीच में एटमॉस्फेयर है, तो ये कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा, आपके सैटेलाइट का रिस्पॉन्डिंग टाइम चेंज कर देगा, बिहेवियर चेंज कर देगा, सिग्नल कंडीशनिंग चेंज कर देगा, दैट ऑल विल डिपेंड्स अपॉन, इस सब कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर टारगेट है। So I'm just not moving ahead in this section. Here I'm just opening a round for you so that you may ask the question. If something is not clear to you, we may have a discussions on that. Fine. So I'm just pausing this for a while so you may ask the question, then we'll proceed. So well, talking again in this scattering phenomena, talking in the scattering. Reception far beyond optical horizon in VHF and UHF range is possible due to the scatter propagation. स्कैटरिंग हमें मदद भी करती है। देखो एक चीज जो एक दूसरे तक पहुंचनी है, यहाँ से यहाँ तक इसका कम्युनिकेशन अगर होना है, अगर ये कम्युनिकेशन यहाँ तक तो डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट तक हो रहा है, लेकिन जो चीज किसी को दिखाई नहीं दे रही है, अगर वो टकराते हुए पहुंचे, स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना, तो अगर कोई चीज टकराते हुए पहुंचे तो सम टाइम ये प्रोपोगेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन रेंज, तो रेंज बढ़ाने में इट हेल्प्स अस, मदद करता है यहाँ पर। ठीक है, both troposphere and ionosphere are in continual state of turbulence. Turbulence का मतलब क्या होता है कि हमेशा एटमॉस्फेयर अपने आप को चेंज करता है, डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द continual state of turbulence.
दिस गिव्स राइज टू द लोकल वेरिएशन। यहाँ पर इसमें होता है एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस होते ही रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। वेव्स पासिंग थ्रू सच टर्बुलेंट रीजन गेट स्कैटर्ड। अब जब वो इन टर्बुलेंस में जाती है, टर्बुलेंस का मतलब कहीं पे चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कहीं पे कम हो गई, कहीं पे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। तो जब भी ये मूवमेंट होता रहता है, इन दैट ड्यूरेशन स्कैटरिंग होती है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन is large compared to size of the turbulent, ये basically diameter size के, that is not come in a figure, is large compared to size of the turbulent eddies, wave scattered in all direction। ये डिपेंड करता है, जो डायमीटर है, जो डायमेंशंस हैं, किसकी डायमेंशन है, एटमॉस्फेयर, और दूसरा है टर्बुलेंस, हम मिट्टी के पार्टिकल आए, तो जो पार्टिकल्स आए, जब ये पार्टिकल एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे तभी एक दूसरे से टकराएंगे और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर। तो डायमीटर साइज एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे तभी वो एक दूसरे पे फेनोमिनल इफेक्ट डाल पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से when diameter is small compared to these irregularities, अगर आपके पार्टिकल्स का डायमीटर कम है तो उस कंडीशन में irregularities इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। जैसे एक चींटी अगर टेबल के ऊपर गिरती है तो टेबल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसे टेबल के ऊपर एक फैन गिरता है तो इफेक्ट आता है। तो जब साइज कंपेरेबल होती है एक दूसरे के साथ में, तभी वो एक दूसरे के ऊपर फिनोमिनल चेंज डाल पाती है। ठीक है।